So primary and secondary we have discussed. Now it is the time to discuss about the tertiary structure of protein. Okay, actually क्या है? Now primary structure modified as Gulen-Ball 3D structure called tertiary structure. यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई होके गुलेन बॉल और 3D फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर, and supposed to be this is the primary structure of the protein, and that will now change into what? Tertiary structure of protein. लोग पढ़े थे कि N terminal and C terminal याद होगा? Here also it is N terminal and C terminal. ठीक है? Now supposed to be these are the individual amino acids which is present in the primary structure of protein. Now the amino acid which is located in the primary structure are distantly located or it is closely located from each other. Distantly located. एक प्रोटीन में, एक पॉलीपेप्टाइड में, एक प्राइमरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हो सकता है कि thousands number of amino acid. तो amino acid एक फर्स्ट अमीनो एसिड जो सपोज टू बी 500 पोजीशन में जो अमीनो एसिड है वो डिस्टेंटली लोकेटेड है कि नहीं? बिकॉज ऑफ व्हाट ना प्राइमरी. अगर आप इसको 3D फॉर्म और गुलेन बॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज हो जाता है, तो डिस्टेंटली लोकेटेड अमीनो एसिड विल कम क्लोज. यस और नो? सो दैट क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द अमीनो एसिड इज बिकॉज ऑफ द गुलेन बॉल फॉर्म और 3D फॉर्म. नाउ जो कि हम लोग देखे हैं प्रीवियस क्लासेस में कि every amino acid has that is the R group which is different from each other, right? तो जैसे ही distantly located amino acid will come close, now these R group of different amino acid will form the different services. क्या बनाएंगे? Different services. These are actually services. One of the service of pocket is called as what? The catalytic site. One of the service of pocket is called as what? The catalytic site. ऐसे तो बहुत सारे सर्विस और पॉकेट होगा, लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर सर्विस और पॉकेट को क्या बोलेंगे हम लोग? कैटालाइटिक साइट और एक्टिव साइट. To which the substrate will bind to convert it into what? The product. So tertiary structure is necessary for the biological activities like enzyme. इसलिए एंजाइम का स्ट्रक्चरली क्या होगा? 3D tertiary structure, गुलेन बॉल फॉर्म. भी समझ में आया? The bond which is needed for this tertiary structure. ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर बॉन्ड नहीं होगा तो ये 3D फॉर्म में, गुलेन बॉल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है. So what are these bonds which is need for the formation of this structure in tertiary structure? Number one is hydrogen bond. Number two, hydrophobic bond. Number three, unique bond. Number four, covalent bond. And number five, van der Waals interaction. तो आप केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे. डाइसल्फाइड बॉन्ड पढ़े हैं कि नहीं?
डाइसल्फाइड बॉन्ड किस कैटेगरी में आता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि दैट इज लूज होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? कोवेलेंट। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड किस कैटेगरी में आ जाएगा? कोवेलेंट। जैसे केमिस्ट्री में मैं घुस नहीं रहा हूँ, आप लोग पढ़े हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, तो यू नीड टू कैटेगराइज ऑल दिस बॉन्ड्स इनटू दिस। ऑप्शन में दे रखा हो, ध्यान दीजिएगा कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है कि आयोनिक बॉन्ड है कि वेंट्रल इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, लाइक दिस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज नीड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो टर्शियरी स्ट्रक्चर और कैटालिटिक साइड और एक्टिव साइड क्या होगा? लॉस होगा कि कंटिन्यू करेगा? लॉस हो जाएगा। सो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है एंजाइम का, that is called as catalysis property. That is why the enzymes are called as catalyst. There are two different type of catalyst are there. Those who catalyze the reaction are called as catalyst. And if these catalysts are present inside this cell, then it is called as biocatalyst or enzyme. And if these catalysts are present outside this cell, non-living के cases में हम लोग chemistry में lab में chemical reaction पढ़ते हैं, and that is called as what ना? Inorganic catalyst और chemical catalyst. तो catalyst हो गया दो टाइप का, जो catalysis करेगा, and this is the biological catalyst or biocatalyst or enzyme made up of protein, structurally tertiary. तो एक्टिव साइट जब तक इसका प्रेजेंट है तब तक ये कैटालाइसिस कर पाएगा, एंड एक्टिव साइट इज डिसाइडेड बाय व्हिच बॉन्ड? These are the 5 different type of bond which decide the structure of tertiary structure to maintain the catalytic site. अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया क्या होगा? एक्टिव साइट will be lost. Enzyme will lose the tertiary structure property, and that is called as what ना? Denaturation. क्या बोलते हैं उसको? Denaturation. Now you need to tell कि what are the factors which go for the denaturation. बताइए किसके प्रेजेंस में डीनेचुरेशन हो सकता है? आप लोग पढ़े हैं क्या है? कौन सा पीएच? देखिए यहाँ पे सिंपल तो है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन। एवरी एंजाइम हैज, रिमेंबर एवरी एंजाइम हैज ए कॉमन ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपके बॉडी में जितने भी एंजाइम है वो एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही, ऑप्टिमम मतलब क्या है ना? सबसे हाईएस्ट स्पीड ऑफ द एंजाइम इज सबसे टॉप में होगा, हाईएस्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. And every enzyme has the optimum temperature which is similar, common, and that is what? And that is what? 37 degrees centigrade, that is 98.4 degree Fahrenheit, which is common to the body temperature. लेकिन every enzyme has not the common optimum pH. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सलिवरी अमाइलेज का जो ऑप्टिमम पीएच है दैट इज 6.8, स्लाइटली एसिडिक. पेप्सिन, रेनिन highly acidic 1.5 to 2.5. Trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, aminopeptidase, pancreatic amylase, pancreatic lipase, intestinal amylase, intestinal, ये जितने भी एंजाइम हैं इनका पीएच क्या है ना? दैट विल बी वेरी फ्रॉम 7.8 टू 7.8.4. अल्कलाइन हुआ कि नहीं? तो इसीलिए कभी भी ये मत बोलना कि हाई टेम्परेचर एंड हाई पीएच. हाई टेम्परेचर राइट है बट चेंज इन पीएच. Right, please. Denaturation. Breakdown of these bonds leads to the loss of the tertiary structure. Factor क्या क्या है? Number 1, high temperature. Number 2, change in pH. Number 3,
salt of heavy metal. Number 4, high energy radiation. These are actually factor which is associated with the denaturation process. Important है, ध्यान रखिए. चलिए आगे. Coming to the next structurally, the next structure of protein, quaternary. Quaternary structure. It is actually the most complex structural protein. It is the most complex structural protein formed of more than one subunit. Is formed of more than one subunit. ये जो subunit की बात कर रहे हैं, ये subunit may be primary, may be secondary, or may be both. क्वार्टनरी इसीलिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इसमें प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है. एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ मोर देन वन सबयूनिट. जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मायोग्लोबिन. पहले हेमोग्लोबिन दे लेते हैं. मॉडिफाइड हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन में आप लोग पढ़े हैं ब्लड टॉपिक में हीम एंड ग्लोबिन, राइट? एंड ग्लोबिन इसमें से प्रोटीन पार्ट, एंड दैट ग्लोबिन इज फाउंड ऑफ 2 अल्फा and 2 beta polypeptide chain. So how many subunit is present here? 4. And all are actually secondary protein. 2 alpha polypeptide and 2 beta polypeptide. So 4 subunit present in the globin protein of the hemoglobin, which is all are secondary. चलिए आगे बढ़ते हैं. This is actually we have completed the structural part of the protein. Now we are coming to the types of protein. So we are coming to types of protein. Number 1, simple protein. सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या है? सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली अमाइनो एसिड. इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट है ही नहीं. मतलब सिंपल प्रोटीन में ओनली प्रोटीन. ओनली प्रोटीन मीन्स व्हाट? ओनली अमीनो एसिड. अगर प्रोटीन के साथ कुछ एडिशनल चीज ऐड हो जाएगा, then that will be called as what? ना कंपाउंड और कंजुगेट प्रोटीन. बात को समझेगी नहीं? तो सिंपल प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली अमाइनो एसिड्स. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिंपल प्रोटीन? हिस्टोन दे सकते हैं, एल्बुमिन,
ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, केराटिन, एटसेट्रा। ना मैं थोड़ा सा खाली बोल देता हूँ, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं खाली आइडिया दे रहा हूँ। एक्चुअली सिंपल प्रोटीन अगेन इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप. One is what na small globular protein, another is large globular protein. Actually all these simple proteins are made up of globular form. तो ये globular protein है. Histone जो है this is actually small globular protein. Small globular protein means इसमें number of amino acid कम होगा. जैसे amino acid का नंबर बढ़ता जाएगा, amino acid का नंबर बढ़ता जाएगा, तो ये small globular protein change into what? Large globular protein. एंड जितना ज्यादा नंबर ऑफ एमिनो एसिड का नंबर बढ़ेगा उतना ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट? उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, सो दैट स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन विल बी चेंज इनटू लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन एंड दैट विल lose the property of water solubility. So with the increasing of the structure of the small globular to large globular, they become water insoluble. ठीक है? एंड हीट कोआगुलेटेड. मतलब आप, मैं छोटा सा एकदम कॉमन एग्जांपल देता हूँ, हेयर को आप अगर फायर में दिखाएंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वो श्रिंक हो जाता है कि नहीं? एंड हेयर इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? केराटिन इज ए लार्ज ग्लोब्यूलर प्रोटीन. एक्चुअली एल्बुमिन से लेके केराटिन तक ये क्या है ना, लार्ज ग्लोब्यूलर प्रोटीन. whereas histone is actually small globular protein. जैसे कि मैंने बताया, स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर वाटर soluble एंड लेस हीट कोआगुलेटेड. लेकिन लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होगा? वाटर insoluble एंड मोर हीट कोआगुलेटेड. समझे? ग्लूटेलिन से कभी कभी क्वेश्चंस रहता है, शायद आप लोग जानते हैं ग्लूटेलिन के बारे में. क्या जानते हैं? ग्लूटेलिन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन wheat endosperm, right? Especially this is present in the wheat, also found in the rice. लेकिन ये ग्लूटेलिन प्रोटीन राइस में कम होता है, व्हीट में ज्यादा होता है. एंड दैट इज व्हाई राइस कंटेन्स मोर कार्बोहाइड्रेट लेस प्रोटीन, बट व्हीट कंटेन्स मोर प्रोटीन less carbohydrate in comparison to rice. And this is why the wheat is more preferable to the sugar patient. जिनको ज्यादा शुगर का प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको राइस से ज्यादा प्रेफर किया जाता है व्हीट. कारण आपके सामने. हर चीज नॉलेज लेना बहुत जरूरी है. कंप्लीट है क्या? I'm coming to the next page. Number 2, simple protein. Sorry, compound protein. और conjugated protein. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन ओनली की प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन. लेट प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन. यहाँ पे दोनों होगा, प्रोटीन भी होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा. एंड ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसी नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. Prosthetic group, different types. So as per here, we will discuss some of the conjugated protein. Number 1. Nucleoprotein.
न्यूक्लियोप्रोटीन में एडिशनल ग्रुप क्या है? न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम्पल देते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन का। प्रोटामीन। It is actually helps in the DNA stabilization. DNA stabilization में इसका रोल है, and also for this form condensation, form head condensation. आइडिया थोड़ा सा ले लीजिए कि प्रोटामीन है क्या। जरूरी नहीं है कि इसको याद रखना है, नॉलेज आप ले सकते हैं। नंबर 2, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में क्या होगा? एडिशनल ग्रुप क्या होगा? एडिशनल ग्रुप क्या होगा? पिगमेंट। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम आप लोग पढ़े हो। साइटोक्रोम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कि नहीं इन द डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, लाइक योर सेलुलर रेस्पिरेशन में आप लोग ईटीसी पढ़े, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो कौन कैरी करता है? साइटोक्रोम। They actually transfer the electrons. Next, number 3rd I, metalloprotein. मेटालोप्रोटीन में हम एग्जांपल देंगे, मतलब यहाँ पे मेटल रहेगा। एग्जांपल दे सकते हैं फेरेटिन। फेरेटिन का रोल क्या है? ऑब्वियसली आयरन के साथ रिलेटेड है, तो फेरेटिन का रोल क्या है? क्या करता है? यस, वेरी गुड। स्टोर्स आयरन इन सेल। तो ये सेल के अंदर आयरन को स्टोर करता है। नंबर 4, फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन में एडिशनल ग्रुप क्या होगा यहाँ पे? फॉस्फेट। एग्जाम्पल क्या देंगे? केजीन। केजीन आप लोग पढ़े हो, मिल्क प्रोटीन है ना, मिल्क प्रोटीन। फिर आते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में एडिशनल ग्रुप क्या है? लिपिड। एग्जाम्पल दीजिए तो। काइलोमाइक्रॉन्स नाम सुने हो कि नहीं? फैट डाइजेशन में एक स्टेप आता है ना, माइक्रो काइलोमाइक्रॉन्स, दैट एक्चुअली formed in intestinal mucosa and transport fat. पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डाइजेशन में। एंड द लास्ट नंबर 6, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में यहाँ पे एडिशनल या प्रोटीन के साथ और क्या है ना? कार्बोहाइड्रेट। विच कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली? जैसे कि एग्जांपल हम दे सकते हैं म्यूसिन। म्यूसिन का नाम तो सुने हो। तो म्यूसिन स्लाइमी सब्सटेंस है, तो उसका मेन रोल क्या होगा? लुब्रिकेशन। हर जगह जहां पे म्यूकस प्रेजेंट है, मतलब आप समझ लीजिए म्यूकस इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ व्हाट ना? म्यूसिन, विच इज एक्चुअली ए ग्लाइकोप्रोटीन। हर जगह उसका फंक्शन सेम है, लुब्रिकेशन।
So this is all about the type of protein on the basis of composition, right? हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन में आते हैं. On the basis of source. On the basis of the source, the types, number one, first class protein or complete protein. First class protein or complete protein. And this is actually formed of all essential amino acids. आप समझ सकते हैं कि इसको क्यों कंप्लीट बोलते हैं. Because it is formed of the all essential amino acid. Essential amino acid means the amino acid which is not synthesized in your body. तो आपको वो amino acid क्या है, डेली डाइट में चाहिए कि नहीं? That is why it is essential. And as the first class protein is formed of all the different type of essential amino acids, so called as complete. अगर किसी प्रोटीन में all the essential amino acid not found or some of the essential amino acid is lacking, then it will be called as incomplete protein or second class protein. तो इसका एग्जांपल देंगे एनिमल प्रोटीन. जितने भी प्रोटीन एनिमल बॉडी में होते हैं, all these are called as complete protein, like your fish, egg, milk, meat, all are formed of what? Na first class protein. Number two, second class protein or incomplete protein. Second class protein or incomplete protein, and it is formed of, so lacking one or more essential amino acid. It actually lacking one or more essential amino acid. तो इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लांट प्रोटीन. First class protein is animal protein, second class protein is plant. Now we are coming to function. Function में number one, act as enzyme or biocatalyst. आप पढ़े कि all enzymes are made up of protein with exception कि without exception? With exception. An exception क्या है? जो ribozyme and ribonuclease B, these are the two different enzymes which is made up of nucleic acid, not protein. So it is all enzymes which is called as biocatalyst will catalyze the chemical reaction except few. Number two, defense protein. ये हो गया enzyme और biocatalyst. Number two, defense. डिफेंस में प्रोटीन का क्या रोल है? बताइए, डिफेंस में प्रोटीन का क्या रोल है? एंटीबॉडी. Otherwise called as what? Immunoglobulin. कौन सा प्रोटीन है? Which protein helps in the immunity? Gamma globulin. Very good. Actually, आप लोग पढ़े भी थे, मैंने ब्लड में आपको बताया था क्लियरली कि अल्फा बीटा गामा तीन अलग अलग टाइप का ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, बट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन एक्चुअली बाइंड्स विद द antigen. And as the gamma globulin protein binds with the antigen, so they have the role in the immunity, and that is why
It is called as immunoglobulin. Why the globulin is called as immunoglobulin? Because it is helps in the immunity, role in the immune system. Number 3, receptor protein. रिसेप्टर प्रोटीन आप लोग जानते हो कि एवरी टाइप ऑफ सब्सटेंस, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, हार्मोन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, हर चीज के लिए रिसेप्टर चाहिए कि नहीं? अगर रिसेप्टर नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा. व्हाई वी आर कॉल्ड कि एवरी हार्मोन एज ए टारगेट साइट. एवरी हार्मोन एज ए टारगेट. जैसे कि एसीटीएच का टारगेट क्या है ना? एड्रिनल कॉर्टेक्स. एफएसएच का टारगेट क्या है ना? गोनाड. टीएसएच का टारगेट क्या है ना? थायराइड ग्लैंड. आपको समझ रहे हो? एमएसएच का टारगेट क्या है ना? मेलानोसाइट सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन. प्रोलैक्टिन का टारगेट क्या है ना? मेमोरी ग्लैंड. व्हाई द हार्मोन इज नॉट बीइंग रिसीव्ड बाय एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी? बिकॉज उस हार्मोन को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर चाहिए वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रेजेंट है. And that is why they will receive there and they will function there. And everything आप लोग पढ़े हैं कि enzymes also specific, hormones also specific. And ये specificity किसके वजह से है? Receptor की वजह से. So the receptors which are found in cell surface, tongue, nose, etc. इवन तो आप लोग जानते हैं कि पेन को रिसीव करने के लिए भी पेन रिसेप्टर होते हैं, है कि नहीं? पेन रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? ये फील किए हो कि पेन हम लोग एक्चुअली फील कहाँ पे करते हैं? पेन कहाँ पे फील? सर पूरा बॉडी में ही पेन फील करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो आपको लगता है कि पेन आपके पूरा बॉडी में है, नहीं. पेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है. पेन रिसेप्टर साइट. पेन है क्या? पेन एक टाइप का हार्मफुल केमिकल है जो आपके बॉडी में रिलीज होता है. एंड उस हार्मफुल केमिकल को रिसीव करने के लिए पेन रिसेप्टर साइट है. हम लोग पेन किलर में करते क्या है? उस हार्मफुल केमिकल को हम लोग किल नहीं करते. किसको किल करते हैं? पेन रिसेप्टर साइट को क्लोज कर देते हैं. पेन रिसेप्टर साइट क्लोज हो गया तो हार्मफुल केमिकल विल नॉट रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स, तो विल फील द स्मूथनेस, रिलैक्सेशन फील करते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड हम लोग पढ़े थे 12th में, शायद आपको याद होगा, आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे कि ऐसे बहुत सारा ड्रग्स होता है जो आपको स्मूथनेस फील कराता है. जैसे कि मॉर्फिन तो पढ़े होंगे. मॉर्फिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर. चलिए, receptor protein found in the cell surface, tongue and nose act as a receptor to receive the different type of hormone, vitamins, minerals every time. Next आते हैं hormone number 4. हार्मोन से हम एग्जांपल देते हैं जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन एटसेट्रा. ऐसे बॉडी में 4 different type of hormone present है. Chemically hormones are made up of 4 different type and that is why hormones are called as chemical messenger. हार्मोन एक्चुअली क्या करते हैं? मैसेज कैरी करते हैं कि नहीं थ्रू आउट द बॉडी, सेल टू सेल की इनसाइड द सेल. क्या होगा? इन बिटवीन द सेल, मतलब इंटरसेलुलर मैसेंजर की इंट्रासेलुलर मैसेंजर. इंटरसेलुलर मैसेंजर मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, कोई सेल के अंदर भी एंट्री करते हैं. with the receptor present outside the cell and the receptor present inside the cell both. Endocrine chapter में पढ़ाएंगे डिटेल्स में. So there are 4 different type of hormones are there chemically. Protein peptide polypeptide hormone, steroid hormone, amino acid derivative hormone and iodothyronine hormone. ठीक है? प्रोटीन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड के अंदर बहुत सारा हार्मोन आ जाता है. जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द टेस्टिस एंड ओवरी ऑल द स्टेरॉइड हार्मोन एक्सेप्ट रिलैक्सिन, एक्सेप्ट इनहिबिन.
इनिबिन भी प्रोटीनियस है, रिलैक्सिन भी प्रोटीनियस। तो हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लाइक आपके सामने इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जीएच, ऑल द पिट्यूटरी हार्मोन, ऑल द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ऑल आर प्रोटीनियस। नंबर 5, कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हम सीधा सीधा एग्जांपल देते हैं, द प्रोटीन व्हिच हेल्प्स इन द कैरियर और एक्ट एज ए कैरियर, एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर। एग्जांपल दे सकते हैं हेमोग्लोबिन, है कि नहीं? क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन है, हेमोग्लोबिन हो गया। और क्या दे सकते हैं? ग्लूटाथोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा एनसीईआरटी का। GLUT4 enable the glucose transport into the cell or enable the glucose in between the cell. यही है point. Enable the glucose transport into the cell. And GLUT4 full form क्या है? GLU stands for glucose, T stands for transport. Number 4 GLUT4 बहुत important है. And number 6 last, structural protein. The protein also act as structure. हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़े थे, कोलाजन पढ़े थे, collagen protein, elastic protein, all these are what act as a structural part. आप लोग शुगर फ्री नाम तो सुने होंगे, मीठा होता है कि वो क्या होता है? खट्टा होता है। अबे शुगर फ्री होता है क्या है? मीठा होता है। फिर शुगर फ्री क्यों बोलते? शुगर फ्री मीठा होता है, ये तो सब जानते हैं। फिर शुगर फ्री क्यों बोलते हैं? कि उसमें शुगर एब्सेंट। शुगर एब्सेंट है तो मीठा कैसे? भाई जानना जरूरी है कि नहीं? शुगर एक्चुअली दो चीज है, नंबर 1 कैलोरी, नंबर 2 टॉक्सिक। ध्यान लीजिए, हम लोग जो शुगर डेली खाते हैं, हम लोग स्लो पॉइजन खा रहे हैं। शुगर इज नॉट फिट फॉर द बॉडी, आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं, वो टॉक्सिक ही है। इसीलिए शुगर को हम लोग बोलते हैं कैलोरी विथ टॉक्सिक। मीठा है, टेस्टी है, रोज खाते हैं, खाइए, कौन मना किया? डायबिटीज पेशेंट के लिए शुगर मना है क्योंकि उसमें कैलोरी है। बेचारा मीठा खाना छोड़ दे क्या? अरे छोड़ दे, उनके सपने में भी मीठा आता है कि हमको कैसे कोई थोड़ा सा कोई भाई अप्रोच कर ले कि थोड़ा खा लीजिए, बस उसी अपॉर्चुनिटी में रहते कि कोई थोड़ा बोल दे कि खा ली। मन तो हमेशा करता है खाने। मोनेलिन एंड थाउमटिन, मोनेलिन, थाउमटिन। नंबर 2 ब्रेजीन, मोनेलिन, थाउमटिन, ब्रेजीन. Mostly I'm telling about the monelin and thaumatin. These two are sweetest protein along with the brezine. ये तीनों क्या है ना? प्रोटीन है, बट स्वीट प्रोटीन, 1000 times sweeter than sugar. सोचिए, प्रोटीन है तो एब्सेंस ऑफ कैलोरी होगा, मतलब कम और लेस कैलोरी होगा, टॉक्सिक भी नहीं है। इसीलिए हम लोग मोनेलिन एंड थाउमेटिन को क्या बोलते हैं? नॉन टॉक्सिक एंड नॉन कैलोरिक स्वीट प्रोटीन प्रेजेंट इन द शुगर। खाइए जितना मर्जी खाइए, कौन मना? और स्पाइडर वेब में क्या होता है? प्रोटीन होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है कि लिपिड होता है? कौन सा प्रोटीन? प्रीवियस क्लास में ही तो बोला था, फिब्रोइन प्रोटीन, याद है? चलिए ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो इसका बोलता है कि आपको पूछना चाहिए कितना फाइबर है, कितना शुगर है, बिल्कुल दोनों पूछना चाहिए, दोनों पूछना चाहिए। शुगर तो पूछना ही चाहिए। हम लोग स्टाइल दिखाते हैं बहुत,
चाय में चीनी नहीं खाएंगे लेकिन दबा के खाएंगे मिठाई की दुकान पे। बहुत शौक है हम लोग का नेचर, बहुत शौक, दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं ताकि कोई अट्रैक्ट हो, देखे कि हाँ इसका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दियर है, लेकिन पीठ पीछे क्या कर रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। फाइबर इज गुड फॉर द बॉडी, गुड फॉर द डाइजेशन। एंड आपको मैंने बोला था पेट सफा तो हर रोग दफा। मतलब क्या है, अगर किसी का पेट साफ है मतलब डाइजेशन ठीक ठाक हो रहा है, डेफिकेशन ठीक ठाक हो रहा है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम एकदम चक टक 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 होगा, एकदम परफेक्ट। 50% से भी ज्यादा इम्यूनिटी कहाँ प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। मैं इधर उधर का चीज नहीं बोलता, एकदम सटीक चीज। मोर देन 50%, पढ़े हो 12th में, माल्ट, mucosal associated lymphoid tissue, it forms more than 50% of the immune system। कहाँ प्रेजेंट है, mucosal associated lymphoid tissue in the GI tract, in the respiratory tract, in the urinogenital tract। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, डाइजेशन। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम मस्त है, भूख बढ़िया लग रहा है, खाना बढ़िया जा रहा है, खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, हर चीज एकदम टन टनाटन है, आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है भाई। एंड कौन हेल्प करता है, फाइबर। इसीलिए हम लोग खाने में सलाद खाते हैं, खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ताकि उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा रहे। फाइबर ज्यादा रहेगा तो आपका डाइजेशन ठीक ठाक होगा। एंड हॉर्लिक्स वाले भी चालाक है, फाइबर कहाँ नहीं मिलता है, सब जगह मिलता है फाइबर। आप जो चावल खाते हैं, हम लोग तो सोप के लिए एकदम जाने जाते हैं वर्ल्ड में, हम लोग एकदम फाइन राइस खाएंगे, व्हाइट पर्ली व्हाइट, जितना व्हाइट ग्लेज करेगा उसका रेट उतना ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं है कि जितना ज्यादा व्हाइट हो रहा है उसका क्वालिटी उतना खराब हो, फाइबर लेस हो रहा है। एकदम सुपर फाइन आटा हम लोग खाएंगे, लो फाइबर लेस आटा, हजम ही नहीं होगा। होटल में जाते हैं, रोटी तुरंत खाएं तो ठीक है, 5 मिनट वेट कर जाओ, उसको लगाना पड़ेगा, नहीं रहा है फाइबरलेस। फाइबर होता तो सॉफ्ट। ज्यादा ज्ञान नहीं है, आगे चलिए। लिपिड, ओके मेरे साथ तो सब कुछ सीख जाओगे, डोंट वरी। दूर भागोगे मेरे से तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कमिंग टू द लिपिड, so first of all lipid is formed of carbon, hydrogen and little oxygen। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो ज्यादा अमाउंट है, और ऑक्सीजन अमाउंट क्या है, कम। एंड आप लोग पढ़े हैं कि लिपिड क्या है, स्ट्रिक्टली की नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल, नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल, is not strictly macromolecule, present in the acid insoluble pool, but इसका molecular weight कितना होगा ना, below 800। That is why it is not strictly macromolecule and it is water insoluble, but soluble in organic solvent like chloroform, ether, benzene, acetone,
कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लिपिड इज ए पॉलीमर और लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर. वाई सो? किसका असेंबल हो? तो मोनोमर का असेंबल हो गया तो पॉलीमर हो गया ना. assembled form of small molecule, जैसे कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? लिपिड और फैट. ठीक है, वन फैटी एसिड वन ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड. वन ग्लिसरॉल टू फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड. वन ग्लिसरॉल थ्री फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड में बी फैट, में बी दैट इज ऑयल. हम लोग घर में ऑयल भी खाते हैं, हम लोग घर में फैट भी खाते हैं. फैट जो है वो सॉलिड होता है इन द रूम टेम्परेचर, एंड ऑयल जो है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. बोथ आर ट्राइग्लिसराइड्स. तो इसीलिए वो कोई पॉलीमर नहीं है, असेंबल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है. लिपिड इज नॉट पॉलीमर, बट यहाँ पे मोनोमर वर्ड यूज ही नहीं करना है. ठीक है. assembled form of small molecule by dehydration. डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा है, एंड उस बॉन्ड का नाम क्या है? जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यहाँ पे उस बॉन्ड का नाम क्या है? लिपिड में बॉन्ड का नाम क्या है? ईस्टर बॉन्ड. बॉन्ड इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड. कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक, प्रोटीन में पेप्टाइड, लिपिड में ईस्टर. So I'm coming to the classification of lipid now. Lipid classify into simple lipid, compound or conjugate lipid, and third is derived lipid. Simple lipid actually formed of fatty acid and alcohol. तो हम प्रैक्टिकली लिख सकते हैं simple lipid is the ester of fatty acid and alcohol. मतलब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गया कि ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल के बीच में ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है. दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म द सिंपल लिपिड. कंपाउंड लिपिड में क्या होगा? दैट इज द esters of fatty acid, alcohol and other. क्योंकि हमने अभी कंजुगेट और कंपाउंड वर्ड यूज किया है. जब तक इसमें अदर ग्रुप्स कुछ ऐड नहीं होगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना? सिंपल. अगर ऐड हो गया तो कंपाउंड. derived lipid, practically it is not a lipid as no fatty acid. फैटी एसिड नहीं है तो ये लिपिड भी नहीं, बट हैव फैट लाइक प्रॉपर्टी. but have fat like properties. That is why it is called as modified lipid or derived lipid. अब सिंपल लिपिड को
हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू न्यूट्रल और ट्रू फैट. Second is wax. Third is क्यूटीन. क्यूटीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, एक सेंटेंस हम बाद में लिखा देंगे. न्यूट्रल और ट्रू फैट क्या है ना, दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड प्लस जो अल्कोहल यहाँ पे होगा, उस अल्कोहल का नाम क्या है ना, ग्लिसरॉल. हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे, ग्लिसरॉल क्या है, सुगर अल्कोहल, याद है. ग्लिसरॉल इज ए सुगर अल्कोहल. So fatty acid plus glycerol, then it is called as neutral or true fat. Wax क्या होगा ना, fatty acid and alcohol other than glycerol. ग्लिसरॉल क्या है ना, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल है. अगर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल फैटी एसिड के साथ प्रेजेंट होगा, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल और ट्रू फैट. अगर यहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल प्रेजेंट होगा, then it will be say that is other than glycerol, then that will called as what ना, wax. ठीक है. अब क्यूटीन के बारे में स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे. हम लोग स्टार्ट करें. मैं आपको कंपाउंड लिपिड बाद में बताऊंगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे. कंपाउंड लिपिड में जैसे कि एक एग्जांपल दे सकते हैं, लिपोप्रोटीन अभी पढ़े थे ना. लिपोप्रोटीन में क्या होता है ना, लिपिड प्लस प्रोटीन. फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ क्या है, फॉस्फेट. वैसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे. सो कमिंग टू द फैटी एसिड एंड glycerol. The first we are coming to glycerol. मैं सिंपल लिपिड का डिफाइन डेफिनेशन लिख चुका हूं ऑलरेडी टेबल में. न्यूट्रल फैट का डेफिनेशन भी ऑलरेडी लिख चुका हूं टेबल में. सीधा हम लोग ग्लिसरॉल में आएंगे, फैटी एसिड में आएंगे. ग्लिसरॉल ये है स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल का. And that is why glycerol is also called as what, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा उसका फॉर्मूला एंड उसका अदर नेम, वाइट इज कॉल्ड एज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. आपके सामने स्ट्रक्चर. Now we are coming to fatty acids. फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या है ना, R with a carboxylic group. तो fatty acid maximum with how many carbon? Maximum with how many carbon? 20 कार्बन. एक फैटी एसिड में मैक्सिमम कितना कार्बन हो सकता है, 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक. ये है क्वेश्चन, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो हम ये बोल सकते हैं ये जो आर ग्रुप आपके सामने है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 19 कार्बन हो सकता है आर ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप विथ 1 to form the 20 maximum in a fatty acid. ये है फर्स्ट पॉइंट. तो R ग्रुप वैरी है. R ग्रुप एक्चुअली क्या है,
ना मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ व्हाट ना CH2 ग्रुप हो सकता है. सो R group is actually either methane or ethane or higher group of CH2. तो R ग्रुप में हम लोग और ज्यादा कुछ नहीं ऐड करने वाले, यही चीज ऐड करने वाले, मीथेन ग्रुप और इथेन ग्रुप और मल्टीपल नंबर ऑफ CH2 ग्रुप. तो आप अभी बोल सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा था कि लिपिड इज मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन विद लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. लिटिल क्या है, ओनली COH तो है और कोई ऑक्सीजन तो आएगा नहीं. क्लियर है? नेक्स्ट पेज में मूव करें. चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करें. कमिंग टू saturated fatty acid. सैचुरेटेड फैटी एसिड का डेफिनेशन क्या होगा? विद डबल बॉन्ड की विदाउट डबल बॉन्ड? हाँ, विदाउट डबल. अगर डबल बॉन्ड हो गया तो वन डबल बॉन्ड हुआ तो वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज polyunsaturated fatty acid. That's why the fatty acid saturated and unsaturated. Unsaturated भी म्यूफा प्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड. तो इसीलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज लेते हैं यहाँ पे. विदाउट डबल बॉन्ड this is actually the structure of palmitic acid. फॉर्मूला क्या है? C16 है यहाँ पे, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक. दिख रहा है आपको? लिटिल ऑक्सीजन दिखाई दिया? The next is stearic acid. स्टीयरिक एसिड फॉर्मूला हो जाएगा C, कितना है यहाँ पे? 18, 36, हाइड्रोजन 36 एंड O2. कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए और एक क्वेश्चन पूछता है, एंड दैट इज व्हाट ना एराकिडिक एसिड. एराकिडिक एसिड में देखिए तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है मैक्सिमम? कार्बन 20 है कि नहीं? एक्चुअली कंफ्यूज इसीलिए बोल रहा है क्योंकि दो टाइप का, एक है एराकिडिक एसिड, दूसरा है एराकिडोनिक एसिड. इसलिए मैं जानबूझकर पहले ही आपको दिखा दिया कि एराकिडिक एसिड इज आल्सो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन 20
Arachidonic acid is also highest number of carbon 20 including carboxylic group. But difference क्या है? Arachidic acid is a saturated but arachidonic acid is a most unsaturated. Most unsaturated का मतलब क्या है? A maximum number of double bond. ठीक है? Complete है क्या? Next comes to unsaturated fatty acid. With double bond. इसके अंदर पहले आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. UFA. With one double bond. कितना नंबर कार्बन है बोलिए तो? 18 है कि नहीं? स्ट्रक्चर ऑफ ओलेइक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब एनसीईआरटी का डायरेक्ट दिया हुआ फॉर्मूला है. ओलेइक एसिड 16 है कि 18 है? देखिए जितना डबल बॉन्ड होगा उतना हाइड्रोजन 2 करके माइनस होता जाएगा. तो होना कितना चाहिए? अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो डबल होना चाहिए. बट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 34. ऑक्सीजन O2. Then we are coming to polyunsaturated fatty acid. PUFA. With actually more than one double bond. एग्जाम्पल देते हैं. This is actually the structure of linoleic acid. यहाँ पे डबल बॉन्ड का नंबर कितना है? 2. नंबर ऑफ कार्बन इज C18. तो H कितना होगा? 32. नेक्स्ट है लिनोलेइक एसिड.
देखिए यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। दिस इज लिनोलेइक एसिड C18 हाँ लिनोलेनिक आंसर लिनोलेनिक लिनोलेनिक एसिड C18H30O2. Now coming to arachidonic acid. The number of the carbon present is highest. कितना होगा 20. Arachidonic acid C20. नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है 4. तो कितना हो जाएगा 32. इसे कोई प्रॉब्लम ही तो बोलिए क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4 है तो 40 से -8 हो जाएगा कि नहीं. अब ये 4 अलग अलग टाइप का पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके स्क्रीन में है. वन इज ओलेइक एसिड, वन इज लिनोलेइक एसिड, linolenic acid and arachidonic acid, which is called as least PUFA and which is called as the most PUFA. बोलिए least PUFA किसको बोलेंगे and most PUFA किसको बोलेंगे. बोलिए ना किसको बोलेंगे. अरे लीस्ट मतलब सबसे कम, प्यूफा मतलब विथ मोनो विथ डबल बॉन्ड. तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सबसे कम किसमें है ओलेइक एसिड में एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सबसे हाईएस्ट किसमें एराकिडोनिक में. तो आप लीस्ट प्यूफा किसको बोलेंगे. अच्छा इसको आप लीस्ट अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं. तो फिर आप लिनोलेइक को क्या बोलेंगे लीस्ट प्यूफा एंड मोस्ट प्यूफा कौन हुआ. So arachidonic is called as most pupa and also most unsaturated. बोथ होगा कि नहीं. सबका कंप्लीट है. प्लीज एवरीवन राइट. सबका कंप्लीट है ना. सब लोग लिखिए. मैं बुला देता हूं आप लोग लिखिए. एट द पॉइंट प्यूफा lower the blood cholesterol. Pufa lower the blood cholesterol. So are recommended by
PUFA lower blood cholesterol, so are recommended by doctors to persons having hypertension, to persons having hypertension, high blood cholesterol, and other cardiovascular disease. ये तीनों जो डिजीज की बात की है हम लोग, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से ही होता है कि नहीं? हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, प्लस अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, all are primarily related what ना extra और high level of cholesterol, and cholesterol को dissolve कौन करता है? ना प्यूफा, मतलब आपके सामने लिनोलेनिक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक, तो तीनों का आप क्या बोलेंगे? एसेंशियल फैटी एसिड कि नॉन एसेंशियल फैटी एसिड? नॉन एसेंशियल, आपके बॉडी में सिंथेसिस होता ही नहीं है, तो डॉक्टर आपको क्यों बोलते कि आप लीजिए? अरे समझिए, सोचिए ना, व्हाई द डॉक्टर रिकमेंड टू टेक प्यूफा एज इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड? अगर सिंथेसाइज नहीं है तो क्या बोलेंगे? एसेंशियल. राइट द नेक्स्ट पॉइंट. प्यूफा प्रेजेंट इन, प्यूफा प्रेजेंट इन sunflower oil and safflower oil. Sunflower oil and safflower oil, SAFF LOWER, safflower, SAFFLOWER, sunflower and safflower oil. लिखे. Next point. Animal cannot synthesize, animal cannot synthesize प्यूफा. प्यूफा का एग्जाम्पल मैंने सामने ही लिख दिया है तीनों, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ. लिनोलेनिक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक, so are called essential fatty acid. Deficiency leads to, अगर ये deficient हुआ बॉडी में, deficiency leads to skin lesions, LESSION, LESSION, मतलब स्किन में अननेसेसरी टाइप का इंजरी होगा. बहुत सारा स्किन में क्या होगा ना, एलर्जी टाइप का होगा, इंजरी टाइप का हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लीजन्स. स्किन लीजन्स, कॉमा, किडनी फेलियर एंड स्टेरिलिटी, किडनी फेलियर एंड स्टेरिलिटी. तो इसीलिए पूछा जाता है, बोला जाता है कि विच विटामिन इज कॉल्ड एज फर्टाइल विटामिन? विटामिन ई. विटामिन ई प्रेजेंट, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल, नाम सुने हो? तो टोकोफेरॉल में क्या कंपोजिशन होता है? यही तीन essential fatty acids are present in the your what tocopherol, that is vitamin E. तो इसीलिए vitamin E externally, as it is not synthesized body, it should be taken through the diet always, otherwise sterility will cause. Next point. Melting point of unsaturated fatty acid is, melting point of unsaturated fatty acid is lower than saturated fatty acid. Lower than सैचुरेटेड फैटी एसिड. एंड ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बोल रहा था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल,
क्या बोलेंगे उसको? ग्लिसराइड्स। मोनोग्लिसराइड में वन होगा ग्लिसरॉल, वन फैटी एसिड। डाइग्लिसराइड वन ग्लिसरॉल, टू फैटी एसिड। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा कि नहीं? डाइग्लिसराइड में दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा कि नहीं? हाँ, वैसे ही ट्राइग्लिसराइड में क्या होना? वन ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल विल रिलीज्ड आउट? थ्री वाटर मॉलिक्यूल। समझे? मैं दिखा देता हूँ आपको। I am taking थ्री फैटी एसिड। बॉन्ड किसके बीच में फॉर्मेशन होगा भी समझ में आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल तीन रिलीज होगा। Now it is called as triglyceride. With the release of free water molecule. इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? ये जो बॉन्ड अभी फॉर्म हुआ, दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट? ईस्टर बॉन्ड। कंप्लीट है क्या? So coming to the next, this triglyceride maybe exist in the fat or maybe exist in the oil form. फैट क्या होगा ना? हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप लोग? घर में ऐसा क्या खाते हैं जो हायर होता है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है? बताइए। घी। हाँ, घी होगा, बटर होगा? ऑयल opposite to this, lower melting point, and
लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल हम बहुत कुछ दे चुके हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, सिंसली ऑयल हो गया, सैफलॉवर ऑयल हो गया, जैसे तो आजकल बहुत सारे ऑयल आते हैं, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, हम लोग रेगुलर खाते हैं, सब इसी में आ जाएगा। दैट इज प्रेजेंट इन द liquid form at room temperature and that is lower melting point. The oil can be converted into fat by means of hydrogenation की dehydrogenation. Hydrogenation ये point mention कर दीजिएगा कि oil can be converted into fat through hydrogenation. Important है ये statement question में आता है. So oil can be converted into fat through hydrogenation मतलब addition of water. किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, ऑलमोस्ट वी आर फिनिश। थोड़ा बहुत बचा है, वैक्स के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, देन हम लोग कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड, देन डिराइव्ड लिपिड। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।